Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your grade 10 SST. As your SST exam is very near, हम हिस्ट्री का पूरा मैराथन आज करने वाले हैं. This is a all chapters complete revision. हम लोग सारे जाओगे आपके 5 chapters है. All of the 5 chapters we are going to cover. So ये थोड़ा सा lengthy session है. टाइम्स विल बी गिवन डिस्क्रिप्शन की कौन सा चैप्टर कब कब है. सो दिस इज द फुल वीडियो जो आपको हिस्ट्री के लिए चाहिए होगा. ओके, सो ऑल द चैप्टर हमने कंप्लीट किया, हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं डिटेल में अच्छे से. Okay, so let us start with the history marathon. Make sure to like this video, share with your friends, and if you are from the starting of the session till the end, make sure to write your name in the comment section. Just comment that yes, you were from the starting till the end of the session, so that I can take your name in the next session of being such a sincere student. So yes, as let us start with our history का marathon. So as you know, 5 chapters है हमारे. Nationalism in India, फिर हमारे पास है industrialization, working of institutions, sorry, you don't have that, making of global world, and we have our print culture. ठीक है, so हम ये सारे चैप्टर्स आज कवर करेंगे. स्टार्टिंग विद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. पहले हम हर चैप्टर से देखेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है. हम पढ़ने वाले फ्रेडरिक सौरो के बारे में, नेपोलियन कोड, लिबरलिज्म, देन न्यू कंजर्वेटिज्म, एज ऑफ रेवोल्यूशन इस टाइम पीरियड में, देन जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन और नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. सो राइज ऑफ नेशनलिज्म हमारे पहले चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वन बाय वन इन डिटेल. ठीक है, so let us start with the first chapter. ठीक है, talking about Frederick Soro. Now, फ्रेडरिक सोरो वो कौन थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. उन्होंने एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाए थे. वो पेंट करते थे, आर्टिस्ट थे. So, उन्होंने एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी इन द 1848. ठीक है, ये जो आपकी पेंटिंग दिख रही है, दिस इज द मेन पेंटिंग जो आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखते हो. This show that disintegrated states under one nation, जर्मनी, इटली, है ना, सारे अलग अलग कंट्री, आयरलैंड, फ्रांस, वो सारे अलग अलग है, राइट. so all of the distinct nations, करेक्ट, जो अलग अलग नेशन है सारे एक नेशन स्टेट में. ठीक है, that was what he was trying to show over here, correct. He visualizes dreams, that is a world of social and democratic republics. उसका एक सपना था कि एक ऐसा वर्ल्ड हो जिसमें सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हो. एंड दैट ड्रीम ही पेंटेड इन दिस पेंटिंग. अब देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये तो आपने 9th में पढ़ा है ना. व्हाट वाज इट अबाउट, हम पूरा नहीं पढ़ना है, हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इसमें. In French Revolution in 1789 was the start of nationalism. Nationalism, liberty, ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन took many steps to feeling a collective identity. सबको एक साथ as a unity maintain करने के लिए लोगों ने several steps लिए थे. Now, what things were done? First one, innovative ideas such as La Citoyenne and La Parte. Citoyen means the citizens, correct? This means the citizens of the country. And La Patrie means the fatherland, correct? This means the fatherland. Okay. Now, next one, creation of a new French flag. French के जो flag का लोग होते हैं, एक new French का flag बनाना was one thing done by the people to show a unity. ठीक है, unity दिखाने के लिए. Next one, election of a national assembly जो हमारे थर्ड estate के लोगों ने बनाया था, और estate general से rename कर को national assembly नाम दिया उसको. Later on, it was also known as convention. उसको कन्वेंशन भी नाम दिया गया. Administrative system which is consolidated, abolishing of customs and internal duties, and uniform weights and measures introduced किए जाएंगे, decimal systems like that. And French was getting a commoner. France में इसलिए तो French common language होती है, right? So that was the stern measures taken by the people of France. Okay, फ्रांस के लोगों ने ये measures लिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए. अब नेपोलियनिक कोड क्या था? नाउ, नेपोलियन जब फ्रांस में वो आए थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. उन्होंने समथिंग विच इज नोन एज सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था इन द 1804. अब वो सिविल कोड को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड.
Okay, like you can see over here, Code de Napoleon Legrand. So that means that ये Napoleonic code है, Napoleon ने ये चीजें दी थी. Okay, अब क्या क्या फीचर्स है? चार थिंग्स थी मेजर. फर्स्ट वन, अबॉलिशिंग ऑफ ऑल बर्थ राइट एंड प्रिविलेज. आपके फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, राइट? फ्यूडल प्रिविलेज है वो सारे अबॉलिश कर देना. एस्टेब्लिशमेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले सब कुछ इक्वल है. एंड सिक्योरिटी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता. एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, जो गिल्ड बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे रिमूव कर दिए थे. सो नेपोलियनिक कोड में ये चार चीजें जो मेन चीजें थी कि ये चीजें होनी ही चाहिए, सिविल राइट्स. ठीक है, ऐसा. नाउ अब करते हैं बात मिडिल क्लास की. जो न्यू मिडिल क्लास है, मुझे पॉलिटिकली एज वेल सोशली, एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो डोमिनेंट एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न. जो एरिस्टोक्रेट्स है हमेशा डोमिनेटिंग थे व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन. पेजेंट्स हमेशा मेजोरिटी में थे. एज यू नो, थर्ड एस्टेट जो था, थर्ड एस्टेट के लोग वर इन द मेजोरिटी ऑफ द होल कंट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में और एक नई क्लास आई, एक न्यू क्लास आई जो वर्किंग क्लास थी, और उसको हम मिडिल क्लास कहते हैं. ओके, द वर्किंग क्लास इज नोन एज द मिडिल क्लास. और ये आर्टिसंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन इन सबको इंक्लूड करता है. ओके, अब देखो नेक्स्ट, लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ओनिंग मैन वर ओनली गिवन द राइट टू वोट. याद है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? मैन जो 25 years से अबव और दे पे द टैक्सेस इक्वल टू द वेज ऑफ 3 days ऑफ अ लेबर, उनको हम बोलते थे एक्टिव सिटीजन. ओनली मैन. ओके, ईच एंड एवरी वुमेन एंड प्रॉपर्टीलेस मैन वर रिस्ट्रिक्टेड. वुमेन और जिन मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट्स नहीं दे सकते थे. अब लिबरलिज्म वर्ड एक लैटिन वर्ड से है, रूट लिबर. लिबर मीन्स फ्री, सो फ्री होना, फ्रीडम जैसा. ओके, फॉर द एंड ऑफ clerical privilege autocracy, the liberal nationalism was stood alive. ये सारे का सारा जो आपका सिस्टम था, क्लोजी, नोबेलिटी, इनके फ्यूडल प्रिविलेज, इन सबको निकालने के लिए लिबरलिज्म ही हेल्प किया. ओके, अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी इन 1815, जो मेजर यूरोप में पावर्स थी वो थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, इन सब ने मिलके हराया था नेपोलियन को. नेपोलियन हैड लॉस्ट. कहाँ पे? यू हैव टू रिमेम्बर, इन 1815 at the place known as Waterloo. Correct? Waterloo में Napoleon was defeated. They used to meet at in Vienna to draw up an European settlement called as the Treaty of Vienna. अब देखो, जैसे आपको याद होगा नाजिज्म में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इम्पोज किया गया था. सिमिलरली अब नेपोलियन हारा, उसने डिस्ट्रक्शन किया था, तो इस वजह से उसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वेनिया अप्लाई की गई. क्या था इस ट्रीटी में? फर्स्ट वन, पावर वाज रिस्टोर्ड बाय बर्बन डायनेस्टी. बर्बन डायनेस्टी कहाँ की डायनेस्टी है? बर्बन, दिस इज योर फ्रांस की डायनेस्टी. ओके, जहां लुइस 16 था. ओके, फ्रांस की डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी. सो जो पावर थी वो बर्बन डायनेस्टी वापस अपने हाथों में ले लेगी. ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज खो दी थी, वो रिकवर होगी. 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्म्ड बाय नेपोलियन लेफ्ट अनटच्ड. जो 39 स्टेट्स जर्मन कॉन्फेडरेशन में बनाया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्ट, उनको टच नहीं किया गया, उनके ऊपर कुछ इम्पोज नहीं. On the French boundary, borders were made to prevent France from expanding. फ्रेंच की बाउंड्री पे एट द एंड्स ऑफ फ्रांस बॉर्डर्स बना दिए कि ये ही फ्रांस है, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते, आप एक्सपैंड कर ही नहीं सकते उससे ज्यादा. ऐसा नहीं इसको भी ले लिया अपने अंदर, इसको भी नहीं, जो है उसमें ही यू हैव टू से सेटिस्फाइड, आपको और आगे हम नहीं भेजेंगे. ओके, अब talking about a very dangerous man, Giuseppe Mazzini. He was born in Genoa in 1807. Okay, he was a member of Secret Survivor Carbonari. ठीक है, कार्बोनारी के वो एक इम्पोर्टेंट थे. ओके, अब okay, before that I guess I did not explain conservatism. What is the meaning of conservatism, students? Do you know that? Conservatism is nothing but a political philosophy. Okay, जो जिसपे हम ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन जो सर्कल किया उसके ऊपर हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, और कस्टम्स एंड क्विक ग्रेजुअली चेंजेस के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट? दैट इज कंजर्वेटिज्म. ओके, नाउ
Talking about Giuseppe Mazzani, he was the member of secret society of Carbonari, and he established two secret society, that is Young Europe in Berne and Young Italy in Marseille. Okay, Marseille कहाँ पे था? It was in the फ्रांस, ठीक है, बट फिर भी यंग इटली उन्होंने मार्स के अंदर बनाया, मार्स सॉरी, मर्जेल्स में बनाया था. ओके, नाउ सी, यंग इटली और एंड Giuseppe Mazzani was also a nationalist. Okay, he was a nationalist. And which what was his nation? He was a Italian nationalist. And his main aim was to unify Italy in a republic. अब वो इटालियन के ही नेशनलिस्ट है तो their main goal was to unify Italy. अब उन्होंने कैसे किया वो? So, age of revolution. बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन, जैसे लुई 16 थे उन सबको ओवरथ्रो कर दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई इन जुलाई 1830. जुलाई 1830 को देयर वाज द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रू एंड द मोनार्की वाज मोनार्की बट इट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मींस the powers powers of the king powers of the king will be limited. ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ द किंग विल बी लिमिटेड. ग्रीस, वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, विच वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन टर्की. ग्रीस स्ट्रगल कर रहा था एंड ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल signed in 1832. So what happened in Treaty of Constantinople? They can ask you an MCQ for your boards. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हुआ था? इन 1832 वो साइन किया गया था एंड ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन. वो इंडिपेंडेंस उनको हमने दे दी. अब इस वजह से नेशनल फीलिंग वाज मेन फोकस हियर, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म. German philosopher Johann Gottfried and discovered the culture in common people through music, dance and folk poetry. So culture करना ये सब करना, इन्होंने एक जर्मन फिलोसोफर थे, कौन? जोहान गॉटफ्रेड. उन्होंने ये सब उनके अंदर मतलब जागृत किया. Now, what happened is there were less jobs and more people. क्या हुआ था? The population of the country, correct? Population तो बढ़ती गई थी, population तो ज्यादा ही थी, पर जो jobs थे, jobs कम थे. अब जो लोग हैं उनको निकाल के दूसरों को थोड़ी ना ले सकते, right? So jobs were less. Due to rise in food cost and bad harvest, widespread pauperism in the country. So food cost बढ़ गए थे, लोग हार्वेस्ट बराबर हो नहीं रही थी तो लोग एक दूसरे को मारने लग गए एंड ऑल दिस हैवॉक. सिलीसिया वीवर्स इन 1845 रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. सिलीसिया में जो वीवर्स थे जो काम करते थे, उन जो कॉन्ट्रैक्टर उनको जो कॉन्ट्रैक्ट देते थे, दे वर नॉट हैप्पी कि नहीं हमारे पर बहुत एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है. सो दैट्स व्हाई द वीवर्स इन 1845 उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई की. हर जगह देखो कुछ ना कुछ हो रहा है. फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड इन 1848. ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था. उसमें 831 members were elected representatives and were conveyed in the सेंट पॉल चर्च. ठीक है, तो जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उन्होंने कन्वे किया इन द सेंट पॉल चर्च. ऑलराइट, now making of German. Otto von Bismarck. Okay, who? Otto von Bismarck. He took the leadership role with the support of Prussian आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, जो ऑटो ऑटो वन बिस्मार्क थे उन्होंने लीडरशिप लिया, प्रशिया की हेल्प ली और ब्यूरोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया. कैसर विलियम वन, ही वाज द न्यू हेड ऑफ द जर्मन एम्पायर. तो ये देखो, इफ यू सी द जर्मन मैप, प्रशिया, ये पूरा स्टेट जो है ये पूरा पर्पल वाला प्रशिया इन 1862. ओके, देन Then in 1871 these all Franco-Prussian wars के थ्रू तो annex कर लिए गए थे states. ओके, जो ये सारे दिख रहे हैं ना ऑरेंज कलर के, राइट ऑरेंज वाले, दे ऑल वर इन द Prussian Empire itself. ठीक है, Prussian नॉट रशियन, Prussian Empire. ऐसे जर्मनी बना. Who was the new head? कैसर विलियम वन. अब सिमिलरली इटली की बात करते हैं तो
टॉकिंग अबाउट इटली, इटली में क्या हुआ था, वी हैड ग्यूजिपी मजानी ऑलरेडी देयर। ठीक है, ग्यूजिपी मजानी ने क्या किया, उन्होंने यूनिफिकेशन प्रोग्राम हेड किया था कि मैं हेड करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इटली का यूनिफिकेशन फेल हो गया था, विच ग्यूजिपी मजानी हैड ट्राइड। और उसके बाद आए विक्टर इमानुअल टू। विक्टर इमानुअल टू जो थे वो बन गए न्यू किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली। जो इटली अब यूनिफाई हो गई इन 1861, उनके न्यू किंग थे विक्टर इमानुअल टू। अब देखो ये मैप दिखा रहा है आपको कि इटली बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन होने से पहले इटली की ये कंडीशन थी। ओके, नाउ अब talking about Britain, we are almost at the end of the chapter. Britain, English Parliament ने power seize कर ली from the monarchy. ठीक है, ब्रिटेन as you guys know, ब्रिटेन के सबसे अपनी आजादियां छीनना, they had a habit of that, correct? इंडिया में and many countries में ब्रिटेन had taken the control, English Parliament ने, so यहाँ पे भी वो करने हैं. So British force took Ireland, Ireland ले लिया उन्होंने in 1801 after revolution failed. ठीक है, रेवोल्यूशन फेल हुआ, उन्होंने आयरलैंड ले लिया. British nation was formed and it was facilitated through the mass propagation of English culture. और सारा यूरोप आयरलैंड उसमें इंग्लिश 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 का कल्चर स्प्रेड आउट हो गया था. इंडिया में भी तो वही हुआ था, करेक्ट? सो सेम सिचुएशन वाज स्टोर्ड अप इन ब्रिटेन एज वेल. अब लास्ट टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. ठीक है, अब मॉडर्न बाल्कन्स जो थे, लाइक बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, रोमानिया, बॉस्निया हर्जगोविना, अल्बानिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, Montenegro and Slovenia. These were included in the modern Balkans. ठीक है, जो बाल्कन क्राइसिस भी हुई थी ना, इन कंट्रीज में थी. These were the modern Balkans. Now, this area was made explosive by romantic nationalism and major European wanted to have control over this. अब ये romantic nationalism के through explosively बना था. So, ये बाल्कन्स यूरोप में सबको ये था कि हमारे पास हो जाए, हमारा कंट्रोल इनके ऊपर है, हर यूरोपियन कंट्रीज में. ठीक है, सो दिस लेड टू द सीरीज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से था? दीज बाल्कन्स कंट्री ओनली. वो सारे यूरोप लड़ रहे थे आपस में कि हमको चाहिए. दैट इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको कहा गया था? बिकॉज ऑफ यू वेमर रिपब्लिक इन द जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर. ठीक है, सो हाउ मच टाइम इन लाइक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स हमने हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. Rise of nationalism in Europe is completed. If you have any doubts, as you know, you can always comment and ask me. So nationalism India हमारा हुआ खत्म. Talking about nationalism in India. अब इंडिया में आते हैं हम वापस से. अब महात्मा गांधी रोल, जलियांवाला बाग मैसेकर, वेरी इंपॉर्टेंट. खलीफात मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, पूना पैक्ट, नॉन कॉपरेशन, साइमन कमीशन एंड क्विट इंडिया. ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. मेनली इसमें क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, बस आपके मूवमेंट्स हैं और डेट्स है. डेट की आई हैव मेड अ सेपरेट शॉर्ट्स. ठीक है, एक शॉर्ट बनाई है. There, all the dates are written for this chapter. Link is there in the I section. I'll attach all the necessary links for SST. Okay, all the links will be there in your I section. Do check it out. Okay, so let us start with nationalism in Europe. Sorry, India. अब नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट महात्मा गांधी जी का क्या रोल था इसमें? हम हमेशा सुनते हैं कि नेशनलिज्म सारे मूवमेंट्स उन्होंने लड़के थे, सब किया था, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था? वी हैव टू स्टडी. Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915. 1915 में महात्मा गांधी आए थे इंडिया. क्यों साउथ अफ्रीका में? वो क्या कर रहे थे? वो पढ़ रहे थे लॉ, एडवोकेट के लिए, लॉयर के लिए, और लॉ पढ़ रहे थे. His method was known as satyagraha, which means agitation for truth. तो वो हमेशा अहिंसा, सत्याग्रह ये सब फॉलो करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई से करेंगे और पीसफुली करेंगे. ओके, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, स्पेशली इन द गुजरात अहमदाबाद रीजन. ओके, लाइक द चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था इन आसाम. ठीक है, 1917. Similarly, he went to Kheda to show support to the peasants in 1918 with Sardar Vallabhbhai Patel. So, अहमदाबाद खेड़ा, कि अहमदाबाद और खेड़ा किधर है? These are in Gujarat.
ठीक है, तो गुजरात में भी अहमदाबाद में हुआ था बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, उनकी वजह से उधर मूवमेंट हुआ, फिर खेड़ा में भी चंपारण मूवमेंट, ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स हुए थे फ्रॉम 1917 टू 1918। ओके, अब talking about Jallianwala Bagh massacre, it is a very heart-touching massacre and every one of you must know. आपको एक पूरी, अगर आपको पूछा गया तो एक पूरी स्टोरी की तरह बोलेंगे वो लोग लिखने के लिए. So what happened is we all know कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हर थोड़े टाइम में वो एक नए एक्ट पास करते थे टू सप्रेस द इंडियंस. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलक एक्ट पास किया था. अब रोलक एक्ट ने क्या किया था? रोलक एक्ट gave them power to repress any political activities and authorize the detention of any political prisoners without transfer up to 2 years. मतलब रॉलट एक्ट ने कहा कि ब्रिटिशर्स के पास पूरी पावर है दैट दे कैन डिटेन, दैट मीन्स दे कैन टेक एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी जो अगेंस्ट अ ब्रिटिश उनको वो दे कैन पुट इट इन द जेल, और उनको भी कोई भी ट्रायल नहीं दे सकते अप टू 2 years वो जेल में रहे, हम उनको बताएंगे नहीं तुमने क्या किया, एंड विदाउट एनी ट्रायल दे विल डू रोल अप. नाउ विद दिस पीपल गॉट वेरी फ्यूरियस, पीपल बहुत गुस्सा हो गए, बट उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं था. हुआ क्या था? ऑन 13th April 1919, important date, 13th April 1919, villagers attended the Baisakhi fair at the Jallianwala Bagh when there was a countrywide martial law. अब देखो क्या हुआ था. There was a, you can say, लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा चल रहा था, बट इट वॉज ड्यूरिंग द बैसाखी. अब पंजाब में इट वॉज बैसाखी का टाइम आ गया था. सो ऑल द विलेजेस पीसफुली, वो कोई हमला वमला कुछ नहीं कर रहे थे, पीसफुली वो लोग बैठ के अपना बैसाखी को एंजॉय कर रहे थे जलियांवाला बाग में. ठीक है, अब क्या हुआ? Britishers thought that they were planning some conspiracy. क्या लगा उनको कि they were planning some conspiracy. उनको लगा कुछ हमारे खिलाफ ये सोच रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे. तो क्या हुआ? जनरल डायर ने एंट्री एग्जिट बंद कर दिया. ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया फ्रॉम ब्रिटिशर अगेन? जलियांवाला बाग का एंट्री करने का पॉइंट, एग्जिट करने का पॉइंट, कोई भी बाहर जाने का पॉइंट सब बंद कर दिया और फायर चला दी ऑन द सिविलियंस. ठीक है, सिविलियन जो उधर नॉर्मल लोग जिनकी कुछ गलती भी नहीं थी, उनके ऊपर सारी फायर चला दी इन द जलियांवाला बाग. ओके, ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया फायर एंड दिस किल्ड thousands of men, women and children. These people used to jump in the wells to save themselves. Okay, if you go now also to Jallianwala Bagh, there are bullets, blood, and everything preserved over there. Okay, so this brutal act enraged other Indians. Although ये पंजाब में हुआ, but as India is united, so सारे Indian states में this was the you know, furiousness. There were nationwide partials, then act attacks on government buildings and clashes. So government बहुत गुस्सा हो गए सब लोग कि ब्रिटिश ने ऐसा किया क्यों ना. Although the thing was, ना तो वो लोग कुछ करे, वो लोग अपना चुप से बैठ के बैसाखी का फेयर कर रहे थे. Okay, they were just celebrating बैसाखी. But General Dyer thought that they are doing some conspiracy, so that's why he opened the fire, killing everyone. That's what known as a massacre. Okay, so then after that, every Indians got very furious and they did many attacks on government buildings of Britishers and etc. Now, talking about Khilafat movement. Now, what is Khilafat movement? Basically, the political protest campaign to influence British and protect the Ottoman Empire. ठीक है, so क्या हुआ था? एक ये protest था. Okay, it was a protest by the Muslims of our country to influence Britishers ताकि वो protect करें. किस जगह वो protect करना है उनको? Protect करना है the Ottoman Empire. Okay, ऑटोमन एम्पायर के प्रोटेक्शन के लिए दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिशर्स. सो क्या हुआ? दिस खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे एंड महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट दिया था. हु वर द टू मेन लीडर? शौकत अली एंड मोहम्मद अली. दीज आर द टू मेन पीपल हु स्टार्टेड दिस कमिटी खिलाफत मूवमेंट. उसमें क्या हुआ था? दे
इवन गांधी जी सेड दैट यस यू आर डूइंग करेक्ट। उनको अपने वो टर्की के मुस्लिम्स थे तो उनको अपना ऑटोमन एम्पायर जो था उसको प्रोटेक्ट करना था, प्रिजर्व करना था, ताकि ब्रिटिशर्स उसके ऊपर कुछ कर ना दे। सो दैट इज द शौकत अली मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, एंड देन गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट दिया था, एंड हेंस दे वांटेड टू जस्ट इन्फ्लुएंस दिखाना था, बट अगेन ब्लड शेड एंड एवरीथिंग। Talking about Salt March, again Gandhi ji ka important movement. Mahatma Gandhi demanded from Lord Irwin, the Viceroy of India, which included the abolishment of salt tax. Okay, before this, what was the thing? Thing था कि लॉर्ड आयरविन ने टैक्स लगा दिया था सॉल्ट पे। गांधी जी बोले कि just when I talk about salt, salt is a basic thing. There should be no discrimination on basis of a poor person or rich person. Everyone eats salt. Salt एक basic है, उसके ऊपर आप टैक्स कैसे लगा सकते हो? So Lord Irwin वाला जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने बोला कि anything happens, I am not going to remove it. उन्होंने सॉल्ट टैक्स निकालने से मना कर दिया। So गांधी जी ने बोला कि ओके, कोई बात नहीं, आप नहीं करते, हम करेंगे। सो सॉल्ट मार्च इज ऑल्सो नोन एज द डांडी मार्च। ओके, इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। गांधी जी गॉट एंग्री, गांधी जी ने बोला कि आप नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ेंगे। सो ही बिगेन द सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। उन्होंने क्या किया था? as soon as he's Dandi, okay, sorry, हाँ, उन्होंने जैसे ही, उधर पहुंचे साबरमती के नियर ऑन द रिवर, उन्होंने क्या किया, उधर से लिया पानी, पानी को बॉईल किया और उसमें से सॉल्ट निकाला। अब सॉल्ट निकाल दे बिना कोई टैक्स पे किया, तो उन्होंने अपना सॉल्ट टैक्स तोड़ दिया था। सो दैट वाज द सॉल्ट मार्च। अब यू शुड रिमेम्बर दैट कभी स्टार्ट हुआ था? द स्टार्ट ऑफ द दांडी मार्च was on 12th March 12th March 1930. Okay, 12th March 1930 was the start date. Okay, और दांडी कब पहुंचे थे वो? दांडी पहुंचे थे, like ended or दांडी you can say, it was on 6th April. Okay, 6th April same year. Okay, 6th April को पहुंचे थे। सो सॉल्ट मार्च हुआ था, उन्होंने ऐसे सॉल्ट को, मतलब सॉल्ट बना दिया और सॉल्ट टैक्स जो था उसको तोड़ दिया था। इन टोटल साबरमती टू दांडी का टोटल था 240 माइल्स। 240 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया था विद हिज फॉलो। स्टार्टिंग में 78 थे, फिर ज्वाइन आते जाते 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 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। ओके, सो दैट वाज द सॉल्ट मार्च। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट, इफ यू पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते क्या है। पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर on the reservation of electoral seats for depressed classes in the legislature. So क्या हुआ था? Basically, the thing was that you know that Dr. B.R. Ambedkar, उन्होंने पहले से ही दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी का हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया था। सो बेसिकली उनको चाहिए था कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर लड़े कि हमको देना है रिजर्वेशन। किसको? इन द इलेक्टोरल सीट्स इलेक्शन, इन सब में दलित्स भी होने चाहिए, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। So क्या हुआ था? The Dalits refused to participate in the movement without separate electorates and reservation of seats. तो क्या हुआ था? उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे। दलित ने बोला कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे मूवमेंट में जब तक हमको इलेक्टोरेट नहीं मिल जाता, तब तक हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। अगर रिजर्वेशन दोगे देन ओनली विल पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। इफ यू डू नॉट गिव अस रिजर्वेशन, हम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया और साइन किया द पूना पैक्ट। किसके साथ? कांग्रेस के साथ इन 1932। ये कहाँ पे हुआ था? इफ यू शुड नो, ये हुआ था आपका येरवाड़ा सेंट्रल जेल में। ठीक है, येरवाड़ा सेंट्रल जेल के उधर हुआ था योर पूना पैक्ट साइन। कब हुआ था? इट वॉज ऑन एग्जैक्ट, यू शुड रिमेम्बर, एमसीक्यूज में आ सकता है, 24 September 1932 at the Yerwada Central Jail. The Pune Pact was signed between um, this thing, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड कांग्रेस। ठीक है, सो ये था आपका
पूना। अब आते हैं हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के पास, ठीक है। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, एज द नेम से है ना, यू ऑलरेडी नो, हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं वैसे भी। नॉन कॉर्पोरेशन, हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इजंट इट। The thing was, the non-cooperation movement was a mass movement. Okay, उन्होंने इन्वॉल्व किया था पार्टिसिपेशन फ्रॉम नेशनलिस्ट एज वेल एज द पब्लिक। हर तरह के लोग आके लड़ने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या फैक्टर से क्यों उनको करना पड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बिकॉज अब ब्रिटिशर्स ने बहुत ही पॉलिसीज लगा थी, तो बहुत ऑप्रेसिव थी, बहुत ही अनजस्ट थी। ओके, लाइक द रॉयल अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ अमृतसर में। तो ऑल ऑफ दिस टाइम के ना मेनी प्रोटेस्टर्स सिविलियंस किल हुए थे, अब उनको लेना था रिवेंज। पर अवेंजिंग इट, गांधी जी बिगेन अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, वो तो नॉन वायलेंस के बिलीवर थे। सो उन्होंने ये अबैक ईयर डिसाइडेड टू नॉट कॉपरेट, उन्होंने बोला कि अब कोई भी लॉ लगाओ हम फॉलो ही नहीं करेंगे उसको, कोई भी एक्ट लगा दो, कोई भी कुछ भी लगा दो, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। वी विल नॉट कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हेंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या हुआ था, हमने बोला था हम फॉलो नहीं, हम मारा पीटी किसी के साथ नहीं कर रहे थे, हम नहीं मारेंगे तुमको, कुछ नहीं, पीसफुली हम बोल रहे थे कि सॉरी, हम नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट था। बट अगेन कुछ लोग जो थे लाइक द रेडिकल्स, यू कैन से, कुछ लोग एज इन रेडिकल्स ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने क्या किया था एट दी चौरी चौरा इंसिडेंट, करेक्ट, इज इट देयर, लेट मी चेक, हाँ इट्स देयर, नो नोटिफिकेशन, ओके। इन दिस मूवमेंट क्या होता, गांधी जी ने लोगों को बोला कि सब इंडियन गुड्स करोगे और इंग्लिश गुड्स को बॉयकॉट कर दो। इंग्लिश की जो जो चीजें जो ब्रिटिश से आई उन सबको बॉयकॉट कर दो, और बस इंडियन में, इसलिए वो क्या पहनते थे, दे यूज्ड टू वेयर खादी। ओके, now, this movement was called for the restoration of Khilafat in Turkey and also untouchability. Untouchability को निकालना, ऑटोमन एम्पायर टर्की में खिलाफत को वापस रिस्टोर करने के लिए भी ये कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। मिलियंस ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया था और बॉयकॉट कर दिया था फॉरेन गुड्स को, और अपने इंडियन गुड्स को यूज करने लग गए। बट जो रेडिकल्स है, एज आई सेड, द रेडिकल्स, उन्होंने इन सब के ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, बाय इट वाज कॉल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1922, आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वर मर्डर्ड as well as police station was put on fire by the British government. British government चौरी चौरा में लगा दी थी फायर। सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने बोला, गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, नॉन कॉपरेशन में हम कॉल ऑफ कर देते हैं। वापस वो लॉन्च हुआ था, बट इट डिड नॉट गेट दैट मच इंटरेस्ट, ठीक है, किसी ने इतना इंटरेस्ट में पे नहीं किया। अब साइमन कमीशन, what happened in Simon Commission is Indian Statutory Commission, famously known as the Simon Commission, वो सेटअप हुई थी 1927। किसके अंदर, अंडर सर जॉन साइमन। Committee had no Indian member, which led to massive opposition and critiques. अब देखो, the British government set up a commission to inquire into the Government of India Act of 1990, ठीक है, जो इंडिया एक्ट बना था ऑफ 1990, उसमें चेकअप करने के लिए ब्रिटिश ने बोला कि साइमन कमीशन तुम लोग जाओ चेक करके आओ। बट इंडियंस को क्या गुस्सा है, इंडियंस ने बोला कि इंडिया की ही चेक कर रहे हो चीज, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर रहे हो, बट उसमें एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई पीपल गॉट एंग्री, उन्होंने बोला कि साइमन गो बैक साइमन की, साइमन कमीशन को चाहिए नहीं, कोई इंडियन मेंबर ही नहीं रखे और इंडिया के बारे में ढूंढे, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अब now, next one, Quit India movement. Quit India movement last movement था before our independence. तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था on 8th August 1942 during the World War II, और उन्होंने बोला कि बस ब्रिटिश ने बहुत अपना कर लिया, now we will end the British rule. अभी क्या हुआ था, देयर वाज अ स्पीच इन बॉम्बे जहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला था डू और डाई, फेमस स्लोगन दिया था। दिस वाज अ वेरी फेमस स्लोगन ड्यूरिंग दैट टाइम। ना कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था कि ब्रिटिश को विड्रॉ करने के लिए, कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, कि बस आप चले जाओ यहाँ से। बट क्या किया था, इंस्टेंट ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था, और ब्रिटिश ने रेफ्यूज किया था टू ग्रांट इंडिपेंडेंस अंटिल द वॉर एंडेड, और जब वॉर एंड हुई तब जाके हमको हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। सो
विद दैट हमारा दूसरा चैप्टर भी होता है खत्म। अब हम जाते हैं थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पोर्शंस में, हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ के हमारा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हम पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिल्क रूट्स, then conquest, trade and disease, role of technology in pest, then labor migration, Great Depression, पोस्ट वर्ल्ड एरा और डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिया। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। ओके, let us start with our globalization. What is globalization? Globalization is nothing but एक economic system होता है जहाँ पे हम एक free movement of technology, goods and people of ideas, इसको हम freely movement में associate करते हैं। Okay, when ideas are getting exchanged, ठीक है, exchange of ideas, exchange of goods all over the worldwide, that is known as globalization globally। ठीक है, this term is normally used to describe rapid increase in interdependence of world's culture, population, and the growing economy। बढ़ती इकोनॉमी के लिए, कल्चर्स के लिए इंटरडिपेंड होना। जैसे इंडिया में भी, इंडिया के जो कल्चर्स है लाइक उपनिषद, महाभारत, ये सब दूसरी कंट्रीज में कैसे गए? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ठीक है, सो ये कैसे हम चेंज ला, दिस इज बॉट बाय क्रॉस ट्रेडिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ट्रेडिंग करना, कम्युनिकेशन करना, राइट। सो डिफरेंट कंट्री से करेंगे तब जाके हमको मिलता है ग्लोबलाइजेशन। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओवर 30 नेशंस ने वॉर डिक्लेयर किया था। वी नो द एलाइज पावर, सेंट्रल पावर, एक्सेस पावर है ना, फॉर 1914, 1914 टू 1918। ओके, मेजोरिटी वर ऑन साइड ऑफ एलाइज। एलाइज में कौन था? सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। अब उनके अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन में था हमारे सेंट्रल पावर, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर, और साथ में मिलकर उन्होंने बनाया था सेंट्रल पावर। पर सबसे ज्यादा पावर यू कैन सी क्लियरली कि एलाइज के पास ही थी, एलाइड पावर के पास ही सबसे ज्यादा पावर थी। करेक्ट। नाउ सिल्क रूट्स, सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट was basically, it was one of the most important route that linked distant places across the world in ancient time। पुराने टाइम में जो एक दूसरे कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करके रखता था फॉर एक्सचेंजिंग ग्लोबलाइजेशन ही, वो सिल्क रूट होता था। ये जो रूट है सिल्क रूट, दिस existed way before the Christian era as well, and until 15th century it was peaked। So these were a great example of pre-modern trade। Religious preachers जो बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म को spread out करते थे, है ना, these were a great source of trade, culture, rituals, everything। Historians ने identify किया है कि several of these silk routes in today's time भी, these routes are both land also and sea links also। Okay, they were used for exchange of ideas and textile, etc. Majorly Asia, एशिया को कनेक्ट किया गया था नॉर्थ अफ्रीका, हाँ नॉर्थ अफ्रीका ही, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप से। दीज ऑल कंट्री यहाँ से लेके यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज होते रहते थे। करेक्ट, आइडियाज एक्सचेंज होते तो ग्लोबलाइजेशन होता था। अब आते हैं कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड एंड डायनेस्टीज में क्या हुआ था। देयर वाज अ कॉन्क्वेस्ट बिटवीन पोर्टुगीज एंड स्पेनिश। पोर्टुगीज और स्पेन में, स्पेनिश में हो रही थी लड़ाई झगड़ा। अब कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडरवे ड्यूरिंग दिस टाइम, अमेरिका की कोलोनाइजेशन चल रही थी। अब Spanish, the most deadly weapon Spanish conqueror used was a smallpox germs। जैसे you know right कि कोरोना वायरस के deadly weapon यूज किया गया था, सिमिलरली स्पेनिश के टाइम पे स्पेनिश कॉन्कर ने यूज किया smallpox germs, जिससे सारी कुछ बर्बादी हो जाए। अमेरिकन ओरिजिनल inhabitants had zero immunity। ठीक है, उनका जीरो इम्यूनिटी थी ऐसी भयानक डिसीज के खिलाफ। सो ड्यूरिंग दैट टाइम अमेरिका's डिस्कवरी, द वास्ट फर्टाइल एंड मिनरल क्रॉप्स, इन्होंने ग्लोबल चेंज किया। सिल्वर एंड अदर थिंग्स, अदर प्रेशियस मेटल माइन जो मेक्सिको में थे एंड पेरू में, उन्होंने यूरोप की वेल्थ और फंड को बढ़ाया था। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन ट्रेड नेटवर्क। हम इंडियंस ने भी बहुत रोल प्ले किया फॉर ट्रेडिंग नॉलेज, गुड, कस्टम, स्पाइसेस, हमारा कोहिनूर, ऑल दिस थिंग्स वर ट्रेड। नाउ
19th सेंचुरी में, in the 19th century, the sudden population boom in the Great Britain led to an increased demand. अब देखो, in 19th century, ब्रिटेन की population बढ़ गई. What we call the situation as the population explosion. क्या बोलते हैं उसको? Population explosion. अब क्या होता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में? दैट अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ग्रेन उतने के उतने ही. अब क्या करें? सो फूड विच वाज इम्पोर्टेड इन ब्रिटेन वाज चीपर देन द इंडिजिनस प्रोड्यूस. ठीक है, जो फूड इम्पोर्ट होता था इन ब्रिटेन, वो जो उधर के लोग का नाम उससे सस्ता था. कॉर्न लॉज ऑल्सो लेड टू इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ द कॉर्न ऑल्सो. उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उन्होंने. ब्रिटिश एग्रीकल्चर, वो इम्पोर्ट जो आ रहे थे उससे compete नहीं कर पाया था. और ढेर सारा लैंड जो था जो कल्टिवेबल था, वो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ब्रिटेन में, शॉर्टेज ऑफ फूड भी हुआ, सब्सटेंशियल क्राइसिस हुए, और एडिशनल फूड इंपोर्ट्स हुए. तो फूड जब ट्रांसपोर्ट हुआ था वाया शिप्स एंड रेलवे, जैसे रबर, कॉटन, कोल, दीज थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेड. उधर कुछ नहीं हो रहा था, बस इम्पोर्ट हो रहा था सब कुछ. टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया इधर? Significant technological inventions in 19th century were telegraph, railways, steamships. ये सारी जो चीजें थी, these were the major things which were used in the technological invention. After the invention of refrigerated ships, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स है, फ्रिजेस है ना, उसमें हम एनिमल्स को रख सकते थे काट के. देन वो यूरोप भेज सकते थे इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन भी, ताकि वो खराब भी ना. Now, render pest. Talk about render pest. It was also known as the cattle plague. It was known as the cattle plague. So it was again a deadly or rapidly spreading cattle plague था ये, और it affected the Africa in the 1880s. And it was carried by infected cattle जो ब्रिटिश से लेके एशिया में थे, which was imported from British Asia. वहां से इंपोर्ट होके आई थी इन्फेक्टेड कैटल्स. सो इस वजह से वो हुआ था ये रिंटर पेस्ट. अब लेबर माइग्रेशन, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इंडिया से कैसे हुआ था? नाउ, indentured labor in real sense means a bonded labor. You know, we say beggar, correct? Beggar, which means forcing to work, correct? Who were under strict contract to work for a particular employee. ये आपके मास्टर है, को ही आपको पूरा का पूरा अपने आप को इसको समा देना है. ओनली आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, like this. Indian indentured laborers are normally recruited to work in Guyana, Suriname, Fiji, Mauritius and other Caribbean islands. यहाँ पे उनको जबरदस्ती लेके जाते थे. That is known as the beggar, bonded labor. Recruitment was done by deceiving. उनको धोखा दे, अच्छा आपको ये काम ओके लेके जाओ, और उधर आपको बेगार काम करवाते थे. On arrival, laborers found out about the actual harsh working. जब वो अराइव कर, अच्छा मॉरिशस जाना, ओके ओके चलते हैं हम लोग, और जैसे उधर पहुंचे तब जाके असली में पता चलता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है. नाउ, दिस न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी इन 1921. ऐसा बेगार वेगार का काम करना, दैट वाज अबॉलिश इन 1921. अब देखो, इफ यू लुक ओवर हियर, आपको देख सकते हो आप इन इंडिया टोटल कहाँ पर मलय, फिजी, Mauritius, Reunion, East Africa, Natal, French Guiana, Suriname, then British Guiana, Trinidad, Martinique, Guadeloupe, Jamaica और अदर वेस्ट इंडीज में, यहाँ सब पे इंडिया के जो थे लोग गए थे, इंडेंटर्ड लेबर्स. ओके. Now, Great Depression. Great Depression, we all know 1929 से mid 1930s था, because of the Great Wall. Sorry, नहीं, Wall Street, Great Wall नहीं, Wall Street Exchange, correct? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, जो यूएसए का सबसे बड़ा था स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, वो हो गया था क्रैश. एंड ड्यू टू दैट क्रैश और ह्यूज ग्लोबल डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड इनकम. एग्रीकल्चर सेक्टर भी अफेक्ट हुआ था. अब क्या थे कॉजेस? प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, यूएस जो लोन्स देता था सबको, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, और यूएस की इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई थी. सो अब पोस्ट वर्ल्ड एरा क्या हुआ?
आफ्टर 2 decades ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 years बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर वापस आ गया. यूएस और यूएसएसआर केम आउट एज द टू सुपर पावर्स कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स और आपका सोवियत. साथ में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. और the second for the stable economic framework was decided by United Nations Monetary and Financial Conference. It was held at Bretton Woods in New Hampshire, यूएस. तो वहां पे ताकि ये वापस इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी रहे और ये वॉर वॉर वापस ना हो इस वजह से. Now, World Bank and International Monetary Fund (IMF) were established. World Bank or International Bank for Reconstruction and Development was established. Even IMF, जो International Monetary Fund है, it was founded to handle external surpluses and deficits between member nations. IMF and World Bank उनको हम बोलते हैं ब्रिटेन ट्विंस क्योंकि दोनों ब्रिटेन वुड्स में बने थे. And they commenced their operations in year 1957. और the system was as per the fixed exchange rate. जो exchange होते थे ना, that way. Last topic है आपका decolonization and independence. Asian and African continents mostly independent हो गए थे in this time. NAM and UNO supported that independence. NAM क्या था आपका? That is your non-alignment movement and United Nations Organization. Independence में support किया था. Developing countries ने also coordinate किया था. G77 group demand the NIEO, New International Economic Order. And it was ये NIEO meant क्या था, एक न्यू सिस्टम था जो मेंबर्स को ऑफ कंट्रीज कंप्लीट करने देगा और कंप्लीट कंट्रोल उनके पास रहेगा फॉर रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज एक्सेट्रा. ठीक है. दैट्स हाउ यू गॉट इंडिपेंडेंस. अब चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर के ऊपर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. इफ यू गाइस वांट अ ब्रेक, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट लाइव, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक. ऑलराइट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, अब आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, प्रिंट कल्चर, बस यही पढ़ा है. नाउ दीज टू चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल, ज्यादा लेंथी नहीं, सो कंप्लीट इट क्विकली. सो विल स्टडी अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिचर्ड आर्कराइट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्री कॉलोनाइज्ड इंडिया एंड जो हमारे फोर फादर्स थे. ठीक है. चलो, टॉक अबाउट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंग्लैंड की बात कर रहे हैं अभी. Now, we are saying that economic revolution in England started within the 18th century. Initial decades of the century में इतने नहीं थे, revolt ये सब भी हो रहा था. After the development हुई, small mills of this point used legacy technology like water wheels, windmills, इन सबसे उन्होंने industry setup की थोड़ी थोड़ी. British Library informs that it had been only after a series of inventions. कुछ inventions हुए, उसके बाद ही थोड़ी चीजें develop होना start हुई. Like Thomas Newcomen's steam-driven piston engine, okay, or Darby family's unique inventions concerning iron manufacturing. इन सब चीजों के जैसे डार्बी फैमिली, थॉमस न्यूकम, कमेन, इन सब ने एक न्यू न्यू इन्वेंशंस की थी जिस वजह से टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कोल माइनिंग, आयरन इंडस्ट्री, ऐसे सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फ्लरिश हो सके. And we're talking about the industrial revolution. With the rapid advancement in technology, access to cotton and other raw materials became easy. ठीक है. हेल्थ इंजीनियर सेक्टर के लिए ये सब कॉटन रॉ मटेरियल आना इजी हो गया था. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अब चीप हो गए थे बिकॉज मोर सैटेलाइट्स से कम्युनिकेशन इजी हो रहा था. एंड द navigable waterways of Britain saw big ships transporting coal to various plants. कोल भी अलग अलग प्लांट से ट्रांसपोर्ट हो पाया था. एंड कोल रिप्लेस्ड वुड एज द प्राइमरी सोर्स. ऑफ वुड को यूज करते थे वो पहले फॉर पावर, बट अब कोल को यूज करने लग गए थे. एंड द सिटी ऑफ ब्रिस्टल सॉ अ मैसिव इंक्रीज इन कोल प्रोडक्शन. बहुत सारी कंट्रीज में, नॉट ओनली इन ब्रिस्टल, बहुत सारी जगहों पे इट वाज इंक्रीज. नाउ देयर वाज, अब समझ आया कि थोड़ा कुछ तो स्टेबिलिटी आई है. A stable government and more importantly stable monetary policy was been there. Now, new inventions added momentum, ठीक है, like the steam engine, जो जेम्स वॉट ने बनाया था in 1763. फिर जॉन के invented flying shuttle.
एडमंड कार्टवाइट उन्होंने बनाया था पावर लूम। इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ हेल्प ही मिला हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन में। फ्लाइंग शटल ने वीविंग ऑटोमेटिक फॉर द फर्स्ट टाइम वीविंग ऑटोमेटिक कर दिया था, और कंजम्पशन ऑफ yarn को इंक्रीज कर दिया था फॉर स्पिनिंग मशीन्स, एंड दिस इवेंचुअली लेड टू एडाप्टेशन ऑफ पावर लूम्स, जिससे और इजीली काम हो सका, एंड टिल डेट वी यूज सच थिंग्स, राइट। अब रिचर्ड आर्कराइट कौन सा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? रिचर्ड आर्कराइट इज रिमेम्बर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला रीजन क्या है? उनका वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम में कुछ ऐसा दिखता है, इट एम्प्लॉयड टेक्निक्स यूज्ड बाय द जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी, जो स्पिनिंग जेनी बनाई थी उससे टेक्निक्स ली गई है। वाटर फ्रेम एक ऑटोमेटेड द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग एंड स्पिनिंग। एग्रीकल्चर सॉरी टेक्सटाइल में फॉर कार्डिंग और स्पिनिंग का प्रोसेस के लिए दिस वाज ऑटोमेटिक मशीन। सेकंड रीजन क्यों थे वो रिमेम्बर, क्योंकि Arkwright had this revolutionary technology in hand. He set up factories where many workers could use several water frames to mass produce yarns for textile manufacturing. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा yarn प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने many factories भी खोली थी जहाँ पे लोगों को employment मिल सका. So hence he was remembered. Now, demerits. What were the problems? What were the cons of industrial revolution? The cotton and textile industry relied on traditional workshops only. वो rural cottage industry इनके ऊपर ही depend करती थी अभी भी. One more reason for slow adaptation of new technology and advanced machines is their cost. अभी अगर आप hand से कर रहे हो और सेम काम आप मशीन से कर रहे हो, यस टाइम कम लगेगा और अच्छा बनेगा, पर पैसे भी चाहिए मशीन खरीदने के लिए. Cheap manual labor became detriment to the progress of industrial revolution. Many products with the help of machines से नहीं बन पाए. Many things are just like कि hand से ही बना सकते हैं, machine से नहीं बन पाएगा. So handmade products were still considered more valuable and of like class, high class का classic than machine made ones. And machines खरीदने के लिए पहले पैसे होने चाहिए. So that was one of the demerits. अब वर्कर्स की प्रॉब्लम, वर्कर की हमेशा से एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम रही है, अबाउट वेजेस एंड वर्किंग आवर्स. करेक्ट, उनके वर्किंग आवर्स बहुत बहुत थे, उनको वर्किंग आवर्स तो बहुत थे बट पैसे उनको कम मिलते थे. और टू उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते थे, बहुत सारे हफ्ते रुकना पड़ता था जॉब मिलने से पहले. और 19th सेंचुरी में उनकी वेजेस इंक्रीज हुई थी, बट इन्फ्लेशन जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, तो जो वेजेस थी वो भी कम लगने लगी थी. ओके, सो दैट्स व्हाई. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्री कॉलोनाइज एरा इन इंडिया. इंडिया में क्या हुआ था? बिफोर द ब्रिटिश केस द गोल्डन बर्ड की सोने की चिड़िया हम इंडिया को बुलाते हैं, राइट, बिकॉज वी आर रिच इन सो मेनी थिंग्स. करेक्ट. इंडिया वाज एट द पिनाकल ऑफ टेक्सटाइल. हमारे उसमें टेक्सटाइल में कितने अहमदाबाद में, राइट, मेन थिंग इट वाज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. करेक्ट. India was the only one that was manufacturing finer cotton clothes. Fine cotton clothes India से ही बनते आ रहे थे. Traders frequently frequented both the land and sea routes through which Indian textiles traveled through far off parts like Central Asia, Gulf of Southeast Asia, और ऐसे ऐसे नेटवर्क्स में पूरा हमारे इंडियन टेक्सटाइल चलती थी. On one hand, there were supply merchants and then there were the export merchants, जो सप्लाई करते थे इंडिया से और जो उधर से एक्सपोर्ट लेते थे. The supply merchants paid the weavers in advance and they transported the finished materials to the ports. And export merchants ये सीधा से सीधा जाके supply merchants से ही दे लेते थे. Okay? नाउ हमारे इंडस्ट्रीज के फोर फादर्स कौन हैं, जिनका मेन और ये रहा कंट्रीब्यूशन. डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम ब्रिटिश, कॉटन मिल्स इन बॉम्बे एंड अहमदाबाद, जूट मिल्स इन बंगाल, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स इन मद्रास स्टार्टेड क्रॉपिंग अप. सो अलग अलग जगह पर ऑल ओवर इंडिया अलग अलग टाइप्स ऑफ थिंग्स ग्रो हुई थी. When British started exporting opium to China from some Indian businesses leverage this upward. जैसे आपको याद होगा इंडिगो भी, इंडिगो was also grown here और उधर ट्रांसपोर्ट कर देते थे. After earning a substantial amount of providing financial and logistic services, they tried to set up factories. Bengal में we had Dwarkanath Tagore and Seth Hukumchand.
ठीक है। बॉम्बे में वी हैड दिनशॉ पतीत और जमशेदजी नसरवंजी टाटा जिन्होंने टेस्को खोला था, करेक्ट। एंड अदर सच विजनरी जिन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज में कंट्रीब्यूशन दिया था इन इंडिया। नाउ इंडिया इंडस्ट्रीज में क्या लक मिला था हमको। When the first world started, ब्रिटिश मिल के पास वॉर मटेरियल सप्लाई करना था, सो उन्होंने चीप मैन्चेस्टर क्लोथ को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। सो अब कहाँ से आएगा, कहाँ से कपड़े आएंगे। सो इंडियन मार्केट केम टू द इंडियन प्रोड्यूसर्स अगेन। इंडिया की जो चीज है वापस इंडियंस को मिल गई वो। सो इंडियन माइंस आल्सो हैड टू सप्लाई वॉर मटेरियल एंड इंस्टेड of negatively affecting the bills, this newly found demand propagated the growth of Indian factories. और जब अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था कपड़ों के लिए उनको और फैक्ट्रीज खोलनी पड़ी थी। दैट्स व्हाई वी हैड लक। आफ्टर द वॉर आल्सो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फेल टू रीगेन द टॉप, जो पहले उनकी पोजीशन थी अभी वो गेन ही नहीं कर पाए। इन द कॉलोनीज आल्सो लोकल प्रोड्यूसर reigned in the home market। इंडिया में भी लार्ज इंडस्ट्रीज को भी प्राइमरली सीन इन बंगाल बॉम्बे ये सारी जगह पे एकदम मेन में मेट्रो सिटीज में इंडस्ट्रीज मिलती थी। स्मॉल स्केल वर्कशॉप भी ऑलमोस्ट हर जगह होती थी। These small scale industries cleverly adopted new technology की जाके capital intensive ज्यादा ना रहे। So they जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थे स्पेशली वर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। उनकी प्रोडक्शन जो उनसे सारे हैंडीक्राफ्ट ये सब छीन लिया गया था वो ब्रिटिश। नाउ इट कुड बी इंक्रीज। सो स्टूडेंट्स हो गया, चार चैप्टर्स कंप्लीट। आखिरी चैप्टर पे हम आ चुके हैं, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एकदम इजी सा चैप्टर है बट आर्ट एंड क्राफ्ट हम सीखने वाले इसमें। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इफ यू वांट गाइस यू कैन टेक अ ब्रेक अगेन, नो प्रॉब्लम। सो चार चैप्टर्स हो गए, लास्ट चैप्टर बचा है हमारा करने को। सो वी विल डू दैट एंड दैट विल बी कंप्लीटेड विद आवर पूरा हिस्ट्री का रिविजन। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चाइना जापान और यूरोप के हम आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग्स पढ़ने वाले हैं। गंटनबर्ग के बारे में, प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट इन इंडिया और मफलिंग द प्रिंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है तो फटाफट करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग इन चाइना। ऑल्दो हमारा समेरियन सिविलाइजेशन जब हुआ था वो प्राइमरी फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग यूज करते थे। लाइक चाइना कंसिडर्ड बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंटिंग। चाइना को माना जाता है कि वो सबसे पहली थी जिन्होंने आर्ट्स पेंटिंग्स ये सब करना चालू किया था। वुड ब्लॉक्स यूज किए जाते थे फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। एंड फर्स्ट ओरिजिनल मतलब एक पेपर लो, एक हमने वुड का ब्लॉक लिया, ठीक है, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाया, विल पुट इट इन पेंट एंड पुट इट ऑन द थिंग, सो उसका पूरा पेंटिंग बन जाती थी। सो इन चाइना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 594 AD, ठीक है। एंड when the Tang dynasty came to power in 618 AD, emperors immensely held in progress of wood। उनको बहुत मजा आ रहा है, बड़ा अच्छी चीज है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और करो और प्रोग्रेस करो और इम्प्रूवमेंट करो इसमें। When you talk about Japan, जापान में भी सेम काइंड ऑफ थिंग्स चल रही थी। चाइनीज मिशनरीज प्रोपोगेट हुई थी इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और इस तरीके से इंस्टेड ऑफ ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग चालू हुई, केम टू जापान 768 AD ऑनवर्ड्स। जापान हैंड प्रिंटिंग चालू कर दिया। लाइक we talk about Diamond Sutra. It is regarded as the earliest known printed Japanese book है, I'll show you. And this book is regarded as the world's oldest printed, सबसे पुरानी जो printed book है वो है डायमंड सूत्रा। अरे इसकी डेट क्या है, 11 मई 1868 एनाटॉमी, इतनी पुरानी है। Okay, now they look over it. This is your Diamond Sutra. Okay, Diamond Sutra. If you can see, truly लगता है ये तो अभी printed है, but it was written in so much before. ठीक है, you can see 1868 में, sorry 18 नहीं, sorry 868 में. Okay, this is how the Diamond Sutra looks like. अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप हमेशा से एडवांस रहना चाहिए उसको, वो रहता आया है और हमेशा रहता रहेगा यूरोप एडवांस। इट थ्रू द सिल्क रूट्स चाइनीज पेपर ने ट्रैवल किया यूरोप में। बिफोर यूरोप कहाँ पे लिखते थे, हाथों पे नहीं। दे यूज द वेलम और एनिमल स्किन, ठीक है, ऐसा। इट वाज आल्सो नोन एज द पार्चमेंट, ठीक है। पार्चमेंट्स भी यूज किए जाते थे फॉर राइटिंग द लेटर्स एंड एवरीथिंग।
बट इट वॉज एक्सपेंसिव होता था और कार्टेड ओनली टू द एरिस्टोक्रेट्स। अब एनिमल स्किन को निकालना, पेपर जैसा बनाना, उसमें टाइम लगता है, सो इसलिए चाइना से पेपर ट्रैवल होकर यूरोप आया। In 1925, पेंटिंग was brought back to Italy. इटली में मार्को पोलो के नॉलेज से पेंटिंग आई वापस, बट अगेन कॉस्ट ऑफ द पेंट डिक्रीज बिकॉज वुड ब्लॉक पेंटिंग जो थी इटली में ज्यादा हो गई थी, तो मार्को पोलो के आइडियाज को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। टॉक अबाउट गटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने इन्वेंट किया वुड ब्लॉक कुड ओनली हेल्प प्रिंटिंग इन अनलिमिटेड वे। ठीक है, उन्होंने बोला कि इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक कुड ओनली हेल्प इन प्रिंटिंग इन लिमिटेड, एक नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। आज अभी आपकी डिमांड जब ये वुड ले लेके मार तो नहीं सकते, so wood block printing proved incapable of handling too much work। छोटा छोटा आराम आराम से करना है, लगाना है तो चलेगा, बट फॉर टू मच आके आप ढेर सारा सब क्या करोगे। सो दिस टाइम पे आए जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, इन द 15th सेंचुरी उन्होंने क्या किया, गुटेनबर्ग एक एग्रीकल्चर एस्टेट में ग्रियो पर थे, उधर दे ही यूज्ड टू लिव। He saw how the grapes and olives were pressed to extract the liquids। grapes और olives को जब करते हैं तो we get liquid, color liquid। So he became a goldsmith and used to create lead molds to produce trinkets of his desired shape। जो शेप हमको चाहिए उस शेप का हमको मिल जाए, such kind of trinkets he used to make। So, क्या किया उन्होंने, Gutenberg drew inspiration from the above two works and made the world's finest printing press। How? उन्होंने मोल्ड यूज किए टू मेक मेटल्स रिसेंबलिंग द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट को रिसेंबल करने के लिए उन्होंने बनाए क्या, हमारे मेटल्स ऐसे किए। ही यूज्ड अ प्रेस सिमिलर टू ऑलिव प्रेस टू प्रेस द पेपर अगेंस्ट द इंक्ड मेटल टाइप्स। अब हमारा पेपर है, दिस इज योर पेपर। इफ आई वांट टू राइट ए, सो क्या करेंगे, ए का एक आई विल टेक अप, लाइक आई विल टेक अ मेटल जिसमें ए लिखा हुआ है, और वो आई विल पुट इट ऑन दिस पेपर। वो पेपर पे आई विल प्रेस इट लाइक ऑलिव प्रेस होता था। तो देयर आर वेरी रीजंस व्हाई गुटेनबर्ग प्रिंटिंग इज नोन एज रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। क्यों बोलते हैं रेवोल्यूशनरी? अब वुड ब्लॉक्स जो थे वो मूव नहीं कर सकते थे, हेंस प्रिंट करना उनको वाज इनएफिशिएंट। इट टुक टू मच टाइम टू मेक द वुडन ब्लॉक इटसेल्फ। वुड को वुड में वो कार्विंग करके बनाना, उसमें ही कितना टाइम लग जाएगा। एंड द वुडन ब्लॉक्स वर नॉट सो ड्यूरेबल, इतने ड्यूरेबल भी नहीं थे वो। करेक्ट। सो गटेनबर्ग ने क्या किया, ही यूज्ड मेटल एज अपोज टू वुड। बोला कि हम मेटल से करेंगे, सो दीज मेटल मेड अल्फाबेट्स, हम उसको मूव भी कर सकते थे। सो वन कैन यूज द सेम सेट ऑफ अल्फाबेट टू प्रिंट वेरियस सेंटेंसेस। अभी ए बी, लेट्स से आपको लिखना है एप्पल। अब एप्पल में ए पी पी एल ई सेम यूज करो, थोड़ी ना ए अलग बनाया फिर दूसरा पी बनाया फिर पी वापस दूसरा बना, नहीं, वही सेम अल्फाबेट्स हम घड़ी घड़ी यूज कर सकते हैं। बट एक वुडन ब्लॉक से एक ही ड्राइंग बन पाएगी, राइट। अभी थोड़ी आप सेम सेम ड्राइंग्स बनाओगे, सो दैट इज इट वाज मोर यूज। Gutenberg's printing press brought about the print revolution। और 16th century में जाके 200 million copies of printed books were in the circulation। ओके, अब प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब मार्केट में ढेर सारी बुक्स आने लगे, प्रिंट होना चालू हो गया, और कॉस्ट जो थी बुक्स की वो कम थी। न्यू रीडिंग पब्लिक emerged who had rely on oral methods early to get new ideas है ना। पहले सुनते रहते थे बस, अभी हमारे बुक्स आ गए पढ़ने के लिए। तो टू मेक द बुक्स पॉपुलर इवन टू illiterate people, printers relied on illustrations that would attract these people। Then these books were read aloud so that the illiterate people could know what was written। जैसे अभी भी यू सी कॉमिक, आपको कॉमिक आप क्या देखते हो कि अच्छा इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका कवर पेज कैसा है, इसके अंदर के पिक्चर्स कैसे, यू सी इन दैट कॉमिक इलस्ट्रेशन देखते हो। सिमिलरली इलिटरेट पीपल को भी समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस ड्राइंग्स बनाई जाती थी। लाइक इफ यू सी इन दिस पीपीटी आल्सो यू कैन सी देयर आर पिक्चर्स। इफ आई गिव दिस ब्लैंक पीपीटी, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, सो इट वोंट बी इंटरेक्टिव, बट इफ यू सी पिक्चर्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली, राइट। The religious implications, the book talks about how the church was against printing any and every idea under the sun। ओके, तो हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं टाइम में। वी आर गोइंग टू वेजास ल्यूलेविशियस informs us that Gutenberg एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। He approached the Roman Catholic Church
ठीक है, वो रोमन कैथोलिक चर्च पहुंचे। उन्होंने दिखाया कि हाउ उनका प्रिंटिंग प्रेस टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, चर्च की टीचिंग ऑफ इम्प्रेस को प्रोपोगेट कर सकता है। सो इन द बिगनिंग प्रिंटिंग प्रेस एंड द चर्च वर फ्रेंड्स। ठीक है, अब चर्च को क्या हुआ फायदा कि चर्च अपनी टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शन सारी चीजों को प्रीचेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। सो दे वर टुगेदर। It was only after the death of Gutenberg that printing press started to be used by Protestants like Martin Luther. So Gutenberg जब उन वो मर गए, so that is how the wrong use started by Protestants. अब जो चर्च था, सेम चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च later concluded that low cost printed books would spread anti-Christian ideas and undermine the authority of the church. तो मार्टिन लूथर के यूज किया, तो उन्होंने बोला ये जो लो कॉस्ट प्रिंटिंग बुक्स है, ये एंटी क्रिश्चियन आइडिया स्प्रेड करेगी और चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन। अब रीडरशिप, रीडरशिप बढ़ी, हाउ, लिटरेसी अभी बढ़ी, बुक्स बुक्स आने लगे, सो लिटरेसी बढ़ी, जो रीडर्स है वो भी बढ़े, स्कूल्स बनाए गए ताकि बच्चे भी पढ़ सके करें। फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स वी सी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक। इफ यू सी दिस बुक, दिस इज नोन एज अ चैप बुक। ठीक है, दिस वाज अ चैप बुक और these are very cheap and meant for poor people. ठीक है, periodicals too came into existence during this time. Scientific documents started printing and other scientifically minded people got access. Philosophical and political books भी print होना start हो गए। अब revolution and print के बारे में बात करेंगे। So now printed books spread progress है, जो बुक्स होती है आपकी भी, they spread ideas across the Europe उन्होंने किया था। People like Voltaire and Rousseau, याद है जीन जेकब रूसो, इनकी वजह से हम उनको contribution देते हैं। People started questioning, they started wondering if emperors were divinely blessed or not। उनको लगता था हमारे पास तो कोई ठोस सबूत नहीं है, भैया अच्छा emperors तो ऊपर से आते हैं। But that was not like that. That was written in the books. People learned to use reason and logical reasoning they started. And they stopped believing what the king or church said. जो church ऐसे useless myths और वो सब बोलते थे कि हम ऊपर से आया इधर से आया, no. The spread of revolutionary ideas is through books act as a catalyst for the French Revolution and even other nationalistic movements. जैसे आपके जीन जेकस रोसो थे, कौन थे, जोन लोग थे, मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने कैसे किया था आइडिया, उन्होंने बुक्स प्रिंट की थी ना, द टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द थर्ड से, ये सब उन्होंने प्रिंट किया था, इससे उनको पता चला था लोगों को, राइट। अब, Church also spread the propaganda. Church also spread propaganda through printed books, but people had already learned to take everything with a grain of salt. As time progressed, प्रिंट टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। ठीक है, अभी थोड़ी ना ये सब आप करते हो, आप क्या सभी प्रिंटर्स हैं, करेक्ट। रिचर्ड हो मेड द रोटरी प्रिंटिंग प्रेस efficient. He employed four cylinders, one for the type and three fed the paper in the kind. This made printing 8,000 sheets of paper per hour possible. Black and white print gave way to colored print. जैसे black and white print होता है, color print होता है, ये सब हुआ, रिचर्ड हो ने हेल्प किया था। Talk about India. इंडिया में भी बिफोर द प्रिंट कल्चर केम, इंडियंस लेवरेज मैन्युस्क्रिप्ट्स, हम मैन्युस्क्रिप्ट यूज करते हैं लाइक फ्रॉम पाम लीव्स, उसके बाद जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, ट्री के ट्रंक्स, देन ऑन द वॉल्स ऑफ स्टोन्स। द प्रिंटिंग प्रेस वाज brought by the Portuguese missionaries to India, गोवा में, and the English printing press was late to emerge. Now Indians also they started printing newspaper like the Bengal Gazette, okay, and vernacular newspapers like such as Raja Ram Mohan Roy's Samvad Kamudi by Raja Ram Mohan Roy, Persian newspaper like Shamsul Akbar, Gujarati language newspaper Bombay Samachar, and here too Orthodox Hindu and Muslim leaders publish their propagandist material, like उनको जो सही लगता था as per the religion वो भी print होता था। Now even religious texts like Ramachritramanas, then Ramayana, then आपके महाभारत, वो भी सारे प्रिंट होने लग गए। Cartoons and caricatures in newspapers are not a modern phenomenon. From 1870 onwards, newspapers ऐसी satirical cartoons carry करते थे। Women also were encouraged to read this by their liberal fathers or husbands. Orthodox households where they secretly learned how to read, and many books are meant for women so that they can read and gain knowledge.
Inexpensive printed books catered to poor people also. People like Jyotibai Phule, B.R. Ambedkar, they published books on social issues and make people aware. Last topic, students, that is muffling the print. During its initial year, the company silenced people like a Hickey, who criticized the company's work. ठीक है, कंपनी जैसे काम करती थी उनको क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं था. जब सिपाही म्यूटिनी हुई थी, ब्रिटिश स्टार्टेड सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर एंड रेडिकल बुक कि आप हमारे सिवाय हमको पूछ के आप कुछ भी पब्लिश करोगे. In 1878, Draconian Vernacular Press Act was passed that seriously undermined press freedom. The more the British tried to silence the nationalistic press, the more nationalistic press newspaper जितना ब्रिटिश चाहते थे कि नहीं है उतना ही न्यूज़पेपर्स बुक उनके अगेंस्ट आती जा रही. For example, केसरी which was written by बाल गंगाधर तिलक. During this time उन्होंने इंडियन के नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए केसरी किया था, right? So with this, students, we have successfully completed your marathon. How much? In up like 1 hour 10 minutes हमने सारे पांचों के पांचों chapters कर लिए हैं. Time stamps are there in the description. Make sure to watch all the videos अगर आप starting से अब तक हो. Thank you so much for watching. Make sure to like, share, and subscribe करो channel को. If you have any questions or feel free to comment us. And I'll be seeing you in the next session जहाँ पे हम geography के map work करने वाले हैं. And then we'll also do our sample papers. I'll see you in the next video. Till then, take care, students, and goodbye.